Hello students, today in this video I am going to take the continued part of the chapter linear equations in two variables, that is solving a pair of linear equations in two variables. In last two videos you have seen that the topic that was discussed was elimination method, substitution method, and even in the third video cross multiplication. Now today I am going to take two more special type of form which are already written there. Number one, the special type in which the coefficients of x and y are interchanged. Clear? And the next type that we will be going to take will be the reducible form. So if we take where the coefficients are interchanged, let us take a question. I am taking 23x 37y is equal to 97 and 37x plus 23y is equal to 83. So I am taking a pair of linear equations in which the coefficients of x and y are interchanged. आप देख सकते हो पहली इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का बन गया है, और हमारे पास ये जो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन का y और फर्स्ट इक्वेशन का x और फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट दे आर सेम. So let us take this one. The method that will be going to apply is very interesting method. बड़ा आसान सा मेथड है. एक बार ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो. तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ एडिंग सब्ट्रैक्टिंग. बड़ी सिंपल मेथड. तो इस मेथड में हम लोगों ने करना क्या है? We have to add them. So the solution is I'll be going to take the first equation. That is, let this one be the first equation. This be the second equation. So we are taking simply adding 1 and 2. So I am writing 23x 37y is equal to 97, 37x 23y is equal to 83. So let's add them. So while adding, there will not be any change in the sign. Just add them. X, this becomes 0 and this is 6, 60. Now when you add this one is also 60. Y and इसको add कीजिए. This is 0, 80. So we can take out the 60 common. Left with x plus y, that is equal to 180. So this implies x plus y will give you 180 divided by 60, that is, you can check it, 3. So we are having x plus y is equal to 3. तो ये भी एक तरीके से रिड्यूसिबल फॉर्म ही है. हम लोगों ने जो विभिन्न मेथड्स पढ़े हैं उसमें से एक स्पेशल फॉर्म है जहां पे अगर कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हैं तो आप लोग उनको ऐड कर दो. We will be getting a new equation, let it be the equation number 3. Now the second was subtracting. अब यह प्रॉपर ग्रामेटिकली लिखें तो subtracting 2 from 1. What do we get? Write the first equation. 23x plus 37y is equal to 97. The other one is 37x 23y is equal to 83. So when you subtract them, just change the sign. So you'll be going to get, this is negative sign क्योंकि ये बड़ी quantity है. So this becomes 4 and 1, 14. So when you subtract these two, you will be going to get plus 14. And when you subtract this one, it's very easy. 4. Coincidentally, this is also coming 14. So we can take out this one as 14 is common. If you want to take minus, तभी चलेगा. Minus common लिए. X minus y is equal to 14. So this implies x minus y will be written as, when it comes to the denominator, we write like this, but this will be going to give you minus 1. So we are having x minus y is equal to minus 1. So we are coming to one more equation. So we are having now two equations which are obtained by adding and subtracting the two equations. So now again we are going to follow the same pattern, adding now. Now I am adding first
रादर फर्स्ट एंड सेकंड की जगह हम लोग थर्ड एंड फोर्थ इस बार ऐड करेंगे. So third is x plus y is equal to 3. Fourth is x minus y is equal to minus 1. When you add them, this will get cancelled. This is 2x is equal to 2. Will give you x is equal to 2 upon 2, that is equal to 1. So we have x equal to 1 as a solution. Now put this one in any one. You can also do the subtraction, but हम लोग subtraction अब नहीं करेंगे. बहुत आसान है कि जब एक वेरिएबल आ जाता है तो हम लोग उसको दूसरे में रख के निकाल सकते हैं. Keep it in the first one. So third equation will give you what? It will give you 1 plus y is equal to 3. Therefore y is equal to 3 minus. I hope this is visible. So this will give you 2. So we are having our second solution, y is equal to 2. तो ये एक पैटर्न है, एक स्पेशल टाइप की टेक्निक है. ये हम लोग ये जो मेथड अभी आप लोगों को बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये वहां लगाना है जहां x और y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए हैं. पहली इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y का होना चाहिए. पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में x का होना चाहिए. ऐसा अगर है तो इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, क्योंकि स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है. इसमें हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर आप अपने टेक्स्ट बुक अपने सिलेबस को चेक करें तो एक और टाइप हमारे सामने आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म. रिड्यूसिबल फॉर्म मींस सिंस दिस चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, two variables, it is linear to having degree 1. So I am taking a question. Let us take I am creating a question for you. 1 upon, let's take 2x plus y and 1 upon 2y plus x. Let it be like this. And when you add, let us take 9 upon 20. And the other pair I am taking 2 upon, that will be 2x plus y. And this is 1 upon 2y plus x is equal to 3 upon 10. Let's take it. So we are having one pair जो कि लीनियर नहीं लग रहा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा, इसकी पावर बन जाएगी -1, तो ये लीनियर कैटेगरी नहीं आ रही. तो ऐसे में हम लोग इसको रिड्यूसिबल फॉर्म यानी इसको हम लोग कुछ करके लीनियर बना सकते हैं. सो इट इज रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म. करना क्या है, आप लोग आइडेंटिफाई करें. हमारे पास यहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको दिखा दूं, ये एक टर्म है जो दोनों के पास है. एंड इफ यू सी दिस वन, दिस इज आल्सो अवेलेबल विद दिस सेकंड वन. So since this term is there and that too ये रेसिप्रोकल में है, तो आप एक काम कर सकते हैं, रिड्यूस करना है ना इसको, तो हम लोग एक काम करते हैं. लेट अस टेक दिस वन. ये जो 1 upon 2x plus y है, पहले तो इसको यूं समझ लेता हूं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं. इसको आप यूं लिखिए 1 upon 2x plus y और दूसरी टर्म में है 1 upon 2y plus x. ये सिर्फ मैं इंटरमीडिएट स्टेप लिख रहा हूं, फिर मिटा दूंगा मैं इसको. Then 2 is common. Again we are left with 1 upon 2x plus y minus 1 upon 2y plus x. तो आप देख सकते हो हमारे पास एक रिपीटिंग यूनिट है. तो इस रिपीटिंग यूनिट को ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने सोचा, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे क्लाउड की शेप में बना रहा हूं ताकि आप लोग सिर्फ इसको समझ लो. और हम लोगों ने करना क्या है, we are going to take let 1 upon 2x plus y, इसको हम लोग एक नया वेरिएबल u v w p t जो भी आपकी इच्छा हो एक अल्फाबेट के नाम से ले लेते हैं. हम लोग इसको u ले लें. एंड 1 upon 2y plus x इसको आप लोग थोड़ी देर के लिए v मान लीजिए. तो इससे होगा क्या, हमारी फर्स्ट इक्वेशन कैसी दिखेगी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी u plus v is equal to 9 upon 20. Clear? And secondly, if you see the second equation will become, सेकंड इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं. सेकंड इक्वेशन विल बिकम 2 into u, ये देख सकते हो 2 और ये u बन चुका है, minus v is equal to 3 upon 10. Students, if you are comfortable with fraction then it is okay. If you are not comfortable with fraction, you can take out this 20 to the other side. डिपेंड करता है, आप लोग अगर फ्रैक्शन से इजी मानते हैं तो हमारे पास दो बड़ी अच्छी इक्वेशन है जिसमें आप इस v को एलिमिनेट कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड. बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद फ्रैक्शन, इट इज बेटर टू टेक दैट एलसीएम. सो आई विल बी टेकिंग दिस 20 to the other side, that is taking as the LCM. So I will be going to get 20 coming this side. This becomes 20u
20v is equal to 9. Let it be the fourth equation. Clear? And this one, take this 10 to the other side, this becomes 20u minus 10v is equal to 3. अब ये जो इक्वेशन है, सॉरी इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं और इसको फोर्थ। अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस आ गई है, आपको करना क्या है? आप जानते हो आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है और आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है। स्पेशल टाइप इस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए वन ऑफ द वेरिएबल इज ऑलरेडी इक्वल, हमारे लिए एक वेरिएबल इक्वल बना हुआ है, सो इट इज बेटर टू गो विद एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड यहां अप्लाई कर देना है। क्या करना है, दोनों के साइन अगर सेम है तो हम दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबट्रैक्ट लेट अस टेक दिस वन, फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो हमें मिलेगा क्या, हम इसके अंदर जो करेंगे वो हो जाएगा 20u प्लस 20v इज इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन है 20u 10v इज इक्वल टू 3। दोनों को हम लोग सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट मींस चेंज द साइन, दिस विल गेट कैंसिल, ये हो जाएगा 30v और ये हो जाएगा अपने पास 6। सो v बिकम्स 60/30 जो हमारे पास 1/5 बनता है। तो ये आ गई हमारे पास v की वैल्यू। नाउ पुटिंग दिस v in any one of the equation, let us take fourth equation में रख देते हैं। तो वहां से रखने पे क्या मिलेगा हमें मिलेगा 20u minus 10v था 1/5 is equal to 3, ये कैंसिल हो गया, 2 मिला, ये हो जाएगा 20u is equal to, take this 2 to the other side, this becomes 5, so u is 5/20 which is 1/4। अब अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ये 2 नंबर का नहीं आएगा, ये 3 to 4 मार्क्स में आता है। तो ऐसे में हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास u और v की वैल्यू आ चुकी है। नाउ इफ आई टेक द हेल्प ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट, ये जो हम लोगों ने a इक्वेशन बना रखी थी, नाउ फ्रॉम a व्हाट यू विल गेट फ्रॉम a, 1/2x + y क्या था, 1/2x + y को u माना था और u की वैल्यू 1/4 है, तो हमारे पास आ गया 2x + y = 4। अब हमारे पास एक हमारी मेन इक्वेशन बन चुकी है। इन द सेम वे the other one is 1/2y + x, ये कितना था, v आ रहा है 1/5, तो हमारे पास आ गया 2y + x = 5। तो अभी ये क्वेश्चन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, मैं इनको और नया नाम डाल देता हूं, लेट दिस बी हमारी फिफ्थ इक्वेशन एंड दिस बी सिक्स्थ। नाउ टेकिंग दिस फिफ्थ एंड सिक्स्थ, अब ये भी हम लोग आराम से एलिमिनेशन कर सकते हैं इसके अंदर, बट हम लोग को थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना होगा, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई नाउ अगेन एलिमिनेशन मेथड पे चल रहा हूं मैं, बट एलिमिनेशन से पहले वेरिएबल इक्वेट करने होंगे। यहां पे x का कोएफिशिएंट है 2, यहां पे x का कोएफिशिएंट है 1, तो मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाइंग सिक्स्थ इक्वेशन बाय 2। तो जरा हम लोग सिक्स्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा चेक करें। तो अगर हम लोग सिक्स्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दैट इज 4y + 2x एंड ट्वाइस यानी कि 10। और हमारी फिफ्थ इक्वेशन क्या है, हमारी फिफ्थ इक्वेशन है 2x + y = 4। तो भी दोनों के साइन सेम है, मैं लिख देता हूं एंड सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8। इसमें से हम लोग 5 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबट्रैक्ट करने के लिए मैंने साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज करते ही ये +2x ये -2x कैंसिल, ये कितना हुआ, ये बन गया 3y। इसको कीजिए आप 10 में से 4 गया 6 आ गया, y की वैल्यू आ रही है 6/3 which is equal to 2। so finally we got y is equal to 2। अब y is equal to 2 है, कहीं पे भी रख के निकाल लो, इनमें से किसी एक पे रख लो, जैसे मैं 6th इक्वेशन में रख के दे रहा हूं, तो 6th इक्वेशन will give you 2 * y + x is equal to 5। so x will be equal to 5 minus this is already 4 with you, so x becomes 5 - 4 1। so we got the result, therefore x equal to 1 y is equal to 2 is the solution। so this was one of the example
rather not one of the example, I have taken one example for each pattern, that is for the coefficients are interchanged, and this one is for reducible form. There are many questions given in the textbook, so in the next video I will be going to take the next few difficult problems, that is where we are having reducible form. There are many different type of reducible form. Reduce the equations to linear, then solve it, then again do that calculation to get the result. So do practice. Thank you.